student of class 12 science. How are you? Fine. Now, in this EMI and AC, it will continue. Now comes the transformer. We are going to discuss the transformer. This is a transformer. Here the slotted cores are there, and here this is your primary and the secondary coil. So it is totally based on the mutual induction that we are going to discuss in this particular video. This transformer is the basic of the transmission of the power supply. So it is a very, very important device that we are going to discuss. And in this transformer, we are going to discuss what? All this principle behind it, mutual induction, and how the transmission occurs. This is the primary, this is the secondary. What are the different idea and the concept is there in this particular topic. See the transformer once again. These are slotted cores are there, which I told you due to the minimizing of the heat loss due to the eddy current. So here the primary coil, here the secondary coil, and there are two types of transformer: step down, step up. That all the things we are going to discuss. Now the transformer we are going to discuss, and this is a transformer. I have brought this for showing to you the transformer, primary and secondary circuit is there. Now, what is a transformer? An electrical device used to convert low alternating voltage at high current into high alternating voltage at low current, and vice versa. Means, in other words, we can say it is used to increase or decrease voltage. Means वोल्टेज को हम बढ़ा भी सकते हैं वोल्टेज को, और वोल्टेज को घटा भी सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, and it is the basic of the power supply, the transformer, and it works in AC only. Now, this transformer are of two types. One is known as a step up transformer. Another is your step down. From the name it's clear. First, just to see the symbol of the transformer in circuit, we are going to draw the circuit like that only. In the circuit, the symbol. ऐसे हम लोग सिंबल ड्रॉ करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. बीच में ये आयरन कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये ट्रांसफार्मर दो तरह का, एक स्टेप अप, एक स्टेप डाउन. स्टेप अप नाम से ही क्लियर है, अगर वोल्टेज को इंक्रीज करना है, इफ यू वांट टू इंक्रीज द वोल्टेज, मीन्स फ्रॉम लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, then we have to use the step up transformer. And if we want to reduce the voltage or step down high voltage to low voltage, then it is known as the step down transformer. Step down and step up. Step up, in case of step up, we know that in case of this transformer, the primary coils are there, secondary coils are there. The number of coils of secondary is NS, and number of coils in the primary is NP. Say I am going to represent it like that. Now, if I am going to fabricate step-up transformer, then NS should be greater than NP. ये हमेशा ज़्यादा रहेगा. क्या? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी. और स्टेप डाउन में क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी. दिस ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन.
इसी प्रोसेस पर बेस्ड होता है। ट्रांसफार्मर देखिए, अब इस प्रोसेस में बेस होता है, या कोई पूछेगा ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, दैट इज द म्यूचुअल इंडक्शन। एंड म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? एन ईएमएफ is induced in a coil, in a nearby coil, when a changing current mostly AC changing current flows in the primary coil. नियर बाई कॉइल कौन सा होता है? सेकेंडरी. दैट इज योर व्हाट? म्यूचुअल इंडक्शन. ट्रांसफार्मर कैन बी. अब ट्रांसफार्मर कैसे बनाया जाता है? ट्रांसफार्मर बनाने का दो तरीका है मेजर. एक तरीका है कि हम ऐसे आयरन कोर लिए और यूजुअली हम लोग स्लॉटेड या इंसुलेटेड आयरन कोर लेते हैं. वो क्यों लेते हैं वो हम लोग डिस्कस भी किए थे, फिर भी करेंगे. स्लॉटेड लिए और यहाँ पर रैप किए. ये हो गया प्राइमरी. और यहाँ पर ये हो गया सेकेंडरी. एक लोड लगा दिया आउटपुट पर, ये हो गया सेकेंडरी. इस तरह का एक दूसरा तरीका होता है ट्रांसफार्मर बनाने का. एक तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर स्लॉटेड वाला ये लिए, लेकिन यहाँ पर ये बीच में एक यहाँ पर रॉड जैसा रहता है. ये स्लॉटेड है सब में. स्लॉटेड क्यों रहता है? वो एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए, हीटिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए. तो यहाँ ये जो बीच में जो एक कोर है, हम लोग प्राइमरी भी इसी में रैप करते हैं और सेकेंडरी भी. ये अगर प्राइमरी है तो सेकेंडरी भी हम लोग इसी में ऐड करेंगे. हम दूसरा कलर से दिखा रहे हैं. सेकेंडरी भी इसी में दूसरा कलर से दिखा रहे हैं इसको. ये कॉइल हो जाएगा सेकेंड. ये सर्किट हो जाएगा सेकेंडरी. इस तरह से भी फैब्रिकेट किया जाता है. एंड दिस कॉइल्स ऑफ these are the coils of insulated. ऐसा नहीं कि एक दूसरे में कॉन्टेक्ट हो रहा है. इंसुलेटेड वायर wound on same iron core. सेम आयरन कोर. तो इस तरह से ट्रांसफार्मर बनाया जाता है. यहाँ पर हम लोग एसी सप्लाई किए और फिर अल्टीमेटली ओके. नाउ कम्स टू द थ्योरी. नाउ थ्योरी, अल्टरनेटिंग voltage is applied in primary coil. First step. Then an alternating current in primary coil, an alternating magnetic field means changing magnetic field
is produced, right? And hence this changing magnetic field or magnetic flux rather is linked with the coil, with the nearby coil. Right? Then this changing flux induces an alternating EMF in nearby that secondary coil. EMF is induced. According to Faraday's law, whenever there is a change in the magnetic flux, EMF is induced. Here, in the nearby coil, it is induced. That's the mutual induction. Now, from Faraday's law of EMI, we can write EP is equal to minus NP, in case of primary, d phi by dt, that is number 1. Now in case of secondary, say ES is equal to minus NS d phi by dt, that is equation number 2. Now if I am going to divide 1 by 2, or better is to divide 2 by 1 for the calculation part, it is better to divide 2 by 1. Then what happens? ES by EP is equal to NS by NP, right? And this is a very important relation, that is equal to K, and K is known as the transformation ratio or turn ratio. So NS by NP is equal to K. So if K is greater than 1, that means according to this relation, NS is also greater than NP. Then it is known as step up transformer. If K is less than 1, that means NP is greater than NS. Then whatever happens, it is the step down transformer. Right? This is an important point. Now comes to the point for ideal transformer. Output power is equal to input power. Right? So output power for the secondary part, output means secondary circuit. So ES into IS, EMF induced in the secondary and the current induced in the secondary, is equal to EMF in the primary and current in primary. That we can write it ES by EP
is equal to ES by EP is equal to IP by IS. So what we are going to see it here, E is inversely to the current. In transformer, potential difference induced is inversely proportional to the current, which is not in the case of the Ohm's law. Here it is totally based on the mutual induction. So E is inversely proportional to I. So we can write, and another point, that efficiency eta, output power, we can write output power by input power into 100. We can easily find out output power by input power. For ideal transformer efficiency कितना होता है 100%, but practically we are getting efficiency is 90% around. हम लोग को जो मार्केट में अवेलेबल है that is of 90% of your this. In transformer, some energy losses are there because the efficiency is practically we are going to see efficiency is not 100%, 90 around, because some energy losses, that is copper loss. First is the copper loss, second is your flux leakage loss, then iron loss, then AD current loss. That is usually being asked. एडी करंट लॉस, जैसा हम पहले भी बोले थे कि ट्रांसफार्मर हम लोग बना रहे हैं ऐसे करके एक कंप्लीट इसका आयरन कोर हम लोग नहीं लेते हैं, ऐसा कंप्लीट लेके ऐसा करके प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसा नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ पर अगर हम ऐसा करेंगे तो व्हाट हैपन्स, because of the changing in the magnetic flux, EMF induced, and EMF induced is going to increase the heating effect. तो यहाँ पर heating effect के लिए heat produce हो जाएगा, because of AD current. यही कारण है कि हम इसको स्लॉटेड करते हैं, लैमिनेटेड करके, तो स्लॉट करके इस तरह का, और बीच में वार्निश दे देते हैं, ताकि वो क्या होगा कि हीट इज़ नॉट गोइंग टू एक्यूमुलेट. तो इसको डायग्रामेटिकली अगर हम लोग समझें, तो इसको डायग्रामेटिकली अगर हम लोग समझें एडी करंट को, तो ये यहाँ पर अगर ये पूरा ब्लॉक लिए हुए हैं सॉफ्टवेयर कोर का, तो यहाँ पर ये एडी करंट ऐसे करके सर्कुलेटिंग एडी करंट यहाँ बनना शुरू होता है. That circulating eddy current, concentric, इस तरह से एडी करंट फ्लो करना शुरू करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एडी करंट द हीटिंग इफेक्ट विल बी हाई. सब पूरा एक्यूमुलेट हो गया हीट, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सबको पार्ट कर देते हैं, स्लॉट वार्निश देके इंसुलेटेड. तो यहाँ पर अगर जो एडी करंट इंड्यूस हुआ, यहाँ पर एडी करंट 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 हुआ, यहाँ पर एडी करंट, और ये सब क्या इंसुलेटेड. सो हीट विल नॉट accumulated. तो हम लोग क्या किए, टू मिनिमाइज हीट, टू मिनिमाइज एडी करंट, ड्यू टू द एडी करंट मिनिमाइज हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्या हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, लैमिनेटेड आयरन कोर, right, and eddy current reduced
in laminated core because their paths are broken by the as compared in the solid core. पाथ्स सबका टूट गया, अलग अलग हो गया. देखिए ये हीट एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है. जैसे इसमें यही होता है लैमिनेटेड कोर. यहाँ ये कंप्लीट नहीं है. देखिए ये जो इसका अलग अलग स्लॉट, ये सब अलग अलग है. अब बीच में वार्निश दिया हुआ है, इंसुलेटेड. तो इससे क्या है, हीट यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ पहले वाले शीट में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में एडी करंट के चलते. लेकिन वो सब हीट एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा है. एक्यूमुलेट नहीं होने से ये ज़्यादा हीट नहीं हो पा रहा है. टू मिनिमाइज द हीटिंग इफेक्ट, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ट्रांसफार्मर इज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस एसी ट्रांसमिशन. अब हम लोग देख रहे हैं, यहाँ मान लेते हैं ट्रांसमिटिंग टावर है या ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, ये रिसीविंग, हमको वायर से भेज रहे हैं. वायर से अगर करंट हम भेजेंगे तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट के लिए हम जानते हैं I² होता है, हीट प्रोड्यूस्ड होता है. तो I² RT. I क्या है, करंट जो हम भेज रहे हैं. R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और केबल. एंड T इज द टाइम, कितना टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचा. अब करंट अगर करंट थोड़ा भी फ्लक्चुएट किया, बढ़ा तो वो स्क्वायर के टर्म में बढ़ेगा. तो हीट प्रोड्यूस्ड इज़ वेरी वेरी हाई. तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मालूम पड़ा देयर विल बी नो करंट. टोटल हीट लॉस, टोटल एनर्जी लॉस, ऐसा हो जाता है. तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो H इज इक्वल टू I² RT है, अब हमको इस H को रिड्यूस करना है. हीटिंग इफेक्ट रिड्यूस करेंगे. तो हीटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने का मतलब है या तो R को रिड्यूस करो. हम लोग I में बाद में आते हैं. R को रिड्यूस कैसे करेंगे, R इज इक्वल टू क्या होता है, ρL/A. लेंथ को इंक्रीज करना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करना. यहाँ R को रिड्यूस करने का मतलब क्या है, L को कम करना और A को बढ़ाना. सही ना होगा, तभी ना होगा, R कम हो जाएगा. तो यहाँ पर जब होगा ऐसा, तो ये इकोनॉमिकल फीजिबल नहीं है. ये फिजिबल कंडीशन नहीं है कि हम उसको R को रिड्यूस करने के लिए, R को कम करने के लिए, रेजिस्टेंस ऑफ द केबल को कम करने के लिए A को बहुत मोटा कर दिए, वायर या केबल को बहुत मोटा कर देंगे तो होगा क्या, इट विल बिकम वेरी हेवी. और लेंथ को भी रिड्यूस करना होता है. तो ये इट इज़ नॉट फीजिबल. ये क्या है, ये कंडीशन नॉट फीजिबल. तो फीजिबल अब क्या बचा, T तो जितना लगना है टाइम उतना ही लगेगा. बचा क्या, I. ऐसा कोई डिवाइस हम लोग साइंटिस्ट सब खोज रहे थे कि I को कम किया जाए. और जहाँ ज़रूरत है फिर हमको अगर डेस्टिनेशन में I को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं. ऐसा कोई डिवाइस, तब आया ट्रांसफार्मर. तब देखा गया कि ट्रांसफार्मर का यूज़ हम लोग करेंगे तो होगा क्या, ट्रांसफार्मर का यूज़ करके यहाँ मान लेते हैं अगर मेरा ट्रांसमिटिंग एंड है, यहाँ पर रिसीविंग एंड है. यहाँ पर हमको करंट को ज़्यादा करके यहाँ पर केबल है. करंट अगर हमको भेज रहे हैं यहाँ से, तो करंट को एकदम कम कर देना होगा. तो इसका मतलब पोटेंशियल को हम लोग बढ़ा सकते हैं. करंट को बहुत कम करके पोटेंशियल को बढ़ाने का मतलब क्या है, वी आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल टू अ वेरी हाई वैल्यू. सो हमको यहाँ पर स्टेप अप, पोटेंशियल को बढ़ाने का कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाएंगे. कहाँ पर, ट्रांसमिटिंग एंड में. और फिर वो अब यहाँ पर जो केबल्स के थ्रू करंट जा रहा है, उसका वैल्यू करंट बहुत कम लेकिन पोटेंशियल बहुत हाई. आप लोग देखे होंगे कि 10,000 वोल्ट बड़ा केबल में लिखा हो रहता है डेंजर. तो वो 10,000 वोल्ट बहुत हाई वोल्टेज, लेकिन करंट बहुत कम है. और फिर यहाँ जब पहुँचा हमको, तो वो यहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज पहुँचा. तो हाई वोल्टेज पहुँचने पर हुआ क्या,
हमको तो हाई वोल्टेज ज़रूरत नहीं, हमको हाई करंट ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के, स्टेप डाउन सिंगल पी होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पर रिसीविंग एंड में लगा के पोटेंशियल को कम कर देंगे और करंट को हाई कर देंगे और फिर डोमेस्टिक यूज़ के लिए भेज देंगे। डोमेस्टिक यूज़ के लिए भेज देंगे। तो ट्रांसमिटिंग एंड में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया और रिसीविंग एंड में हम क्या किया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर से ही संभव है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर द पावर ट्रांसमिशन। ओके, थैंक यू।